Hello, I'm Deepika Vishwas. I'm going to tell you about histopathology stainings. So, what is histology? It is a branch of biology which studies the microscopic anatomy of biological tissues, where, with the help of microscopic examination, we can examine the tissue in order to study the symptoms or the manifestation of diseases. So, for that microscopic examination, we require to stain our tissues, our simple samples. For that, the stainings are the technique used to enhance the contrast in sample, generally at the microscopic level. Stains and dyes are frequently used in histology, histopathology, hematology, and cytopathology that focus on the study and diagnosis disease at a microscopic level. Stains may be used to define biological tissues, cell population or organelles within the individual cells. That means जो भी हमें डिज़ीज़ आइडेंटिफाई करनी है उसके लिए हम टिश्यू प्रोसेसिंग करते हैं. टिश्यू प्रोसेसिंग करने के बाद हमारी जो टिश्यू सेक्शंस होते हैं उसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना होता है, जिससे हमें चेंजेस इन द नॉर्मल एंड एबनॉर्मल टिश्यूज़ पता चलते हैं. माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करने के लिए टिश्यू प्रोसेसिंग के बाद जो सबसे मेन स्टेप होता है उसे स्टेनिंग कहते हैं. स्टेनिंग का यूज़ करके हम लोग डिफरेंस कर सकते हैं इन द बायोलॉजिकल टिश्यूज़, सेल पॉपुलेशन से मतलब WBCs, RBCs एंड द ऑर्गेनेल्स विद इन द इंडिविजुअल सेल्स. सो स्पेशल सेल्स स्टेन्स कुछ होते हैं, दैट इज़ द स्टेन्स that a technique to highlight various individual tissues components once we have preliminary information from the hematoxylin and eosin stains. हीमेटॉक्सिलिन और ईओसिन बहुत ही ज़्यादा कॉमन स्टेन है जो हर हिस्टोपैथोलॉजी लैब में अवेलेबल होता है, और फॉर दी ऑलमोस्ट एवरी टिश्यू टाइप्स हीमेटॉक्सिलिन एंड ईओसिन स्टेन का यूज़ किया जाता है, जो बहुत अच्छी इमेज हमें माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में देती है. अगर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हीमेटॉक्सिलिन ईओसिन स्टेन से अच्छी इमेज नहीं आ रही है, उस केस में बहुत सारे स्पेशल स्टेन्स का यूज़ किया जाता है. स्पेशल स्टेन्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई सर्टेन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल सब्सटेंसेज प्रेजेंट in the cells and tissues which cannot be identified on routine hematoxylin eosin stains or are better appreciated on the special stains. So, histological studies are used for, it is used for so many labs, for the forensic investigation, for autopsy, diagnosis, and also for the education purpose. The process of histological studies takes 5 different key stages. That is, we know that is the tissue processing. If we not do the tissue processing wisely, completely and properly, we cannot identify the microscopic examination by doing just staining. So for that, fixation, processing, embedding, sectioning and staining is very important. So what are the different stains? There are so many different stains. Here I am classifying some of them. So for the carbohydrates we use special stain like PAS stain, that is periodic acid shift stain. This is very common after the hematoxylin and eosin stain. Then for the carbohydrates we also use enzymatic digestion technique and Elchian blue staining, whereas for staining the amyloids we use Congo red stain and crystal methylene violet stains. For the nucleic acid we used Felgen stains and methylene green pyronine stains. For lipid stain there is oil red stain and Sudan black B stains. For microorganisms, we all know we do work on the bacteria, so Ziehl-Neelsen stains you have heard about it. Then Gomori, methenamine, silver staining. Then for the connective tissue stains we use reticulin, then Massen's trichrome, Van Giesen stains. Then for the pigmentations and the different minerals identification we use Pearls stain, and finally the hematoxylin and the eosin stain. So this is the classification of different stains based on the different tissue types.
some other category of staining dyes, it is just divided into two different segments, but most of the stains are same, and added some more stains like advanced stains. That includes, it is divided into two, that is advanced and other is the modern stains. So advanced, that is immunohistochemical, then routine hematoxylin and eosin stain, and in situ hybridizations. For modern stains includes Mason stains, Golgi stains, toluidine blue stains, etc. Let's first talk about hematoxylin and eosin stains. What is this? This is a staining that is used most commonly in the histopathology lab, which was first stain applied to the tissue sections. It gives diagnostic information in most of the cases. It is used as a combination of two stains, two dyes, that is hematoxylin and eosin. This is two different dyes, and demonstration of nucleus and cytoplasmic inclusion in clinical specimens. In this case, alum acts as an mordant and hematoxylin containing alum stain the nucleic light blue. जो न्यूक्लियस होता है वो एलम का काम होता है कि वो हीमेटॉक्सिलिन को, कोई भी डाई को किसी भी सैंपल के संग अटैच कर सके। तो मॉर्डेंट की तरह काम करता है एलम, जिस केस में हीमेटॉक्सिलिन कंटेनिंग जो एलम है वो न्यूक्लियस के संग बाइंड करके लाइट ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। द काउंटर स्टेनिंग इज डन बाय यूजिंग ईओसिन विच इम्पार्ट पिंक कलर टू द साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में पिंक कलर हो जाएगा और न्यूक्लियस में लाइट ब्लू कलर हो जाएगा। तो in this case they are talking about the normal slides. अगर इनमें कुछ चेंजेस आते हैं और चेंजेस दिखते हैं इन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, फिर हम लोग उसको डिजीज़ कॉज बता सकते हैं कि ये डिजीज़ कॉजिंग जो टिश्यू है। For the hematoxylin and eosin staining, there are some of the reagents like Harris hematoxylin, and for the eosin solution there are yellow eosin, and they prepare the staining dye manually. For the procedure, deparaffinize the sections, flame the slide on burner and place in the xylene. हमें पता है कि जब हम लोग टिश्यू प्रोसेस करते हैं तो लास्ट में टिश्यू सेक्शन को कट करने के बाद उसमें कुछ पैराफिन के कंटेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हमें वो पैराफिन को रिमूव करना होता है फ्रॉम द टिश्यू सेक्शन, जिसके लिए हम लोग वाटर बाथ पे उसे रखते हैं और उसको स्लाइड पे प्लेस कर देते हैं। स्लाइड पे रखने के बाद उसको फिर से हम लोग एक स्लाइड से नॉर्मल हीटेड टेम्परेचर पे रखते हैं, जिससे कि जो वैक्स है वो मेल्ट आउट हो जाए। देन उसको क्लीन करते हैं विद द यूज़ ऑफ xylene. Hydrate the tissue section by passing through decreasing concentration of alcohol baths and water. As we know कि जब हमारा टिश्यू प्रोसेसिंग का लास्ट स्टेप होता है, फिर स्टेनिंग के बाद, स्टेनिंग से पहले हम लोग इस प्रोसीजर को उल्टा करते हैं, रिवर्स में चलाते हैं, जिससे कि जो भी उसमें कंटेंट्स हैं एक्स्ट्रा वो रिमूव हो जाए, हाइड्रेटेड हो जाए, हमारा टिश्यू फिर से नॉर्मल कंडीशन में आ जाए, सो दैट वी कैन स्टेन इट. Staining is done by hematoxylin for 3 to 5 minutes. Then wash off the extra stain and using the water until the blue color is not removed from that. Then differentiation is done by using the 1% acid alcohol for 5 minutes. Then wash off the acid alcohol from the section are again blue by dipping in a alkaline solution followed by the tap water wash. We have to wash the staining quickly after the stain, so that there is not excess amount of stain present on the tissue section or the smear, we can say. Then stain in 1% eosin Y for 10 minutes. Then again wash under the water. फिर उसको डिहाइड्रेट करा जाता है इन इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्कोहल एंड क्लियर इन द xylene, सो दैट जो भी एक्स्ट्रा स्टेन उसमें प्रेजेंट हो वो निकल जाए, क्योंकि जो हमारी हेमेटॉक्सिलिन है और हमारा जो ईओसिन है वो पर्टिकुलरली न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में जाके बाइंड हो गया होगा। अगर उसको रिमूव नहीं करेंगे एक्सेस को, तो वो भी हमें फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट देगा. देन माउंट इज़ डन बाय यूजिंग द माउंटिंग मीडियम
and observe under the microscope. In the result, this is talking about the normal tissue, normal type of the smear. Nuclei will give the blue and black color. Cytoplasm will be black. If it is the muscle fibers, it will show the deep red color. In case of RBCs, will show the orange red color. Fibrin, it gives the pink color. So in the image we can see the difference between the nuclei and the cytoplasm. Next, we will talk about PAS stain, that is periodic acid shift stain. Here in the principle, so two staining is used here, that is periodic acid and Schiff reagent. In this case, the vicinal glycol groups are combined with the periodic acid and oxidize it into the dialdehydes, which on the reaction with Schiff's reagents gives insoluble purple magenta compounds. What we need in the end, we need a differentiation in the different components in one smear. So for that we need different stains which can react with the tissues and give a specific color so that we can examine under the microscope. Uses of PAS stain. PAS is used to demonstrate glycogen and neutral mucoproteins in diagnosis of poorly differentiated adenocarcinoma of various tissues like stomach, pancreas, lungs. In diagnosis of hepatocellular carcinomas. So these are the uses or purpose of using the periodic acid Schiff stains. For the reagents, as we know, we use periodic acid solutions, Schiff reagents, etc. Let's talk about the procedure. So we have completed all the steps with tissue processing, and finally we have cutted the tissues on the small pieces and placed on the smear. So fix the film for 15 minutes in methanol. After that, clear off with the running tap water and dry the smear. Treat the slide with 1% periodic acid for 10 minutes. Again rinse with the tap water and dry. Then finally treat with the Schiff reagent for 30 minutes. In this 30 minutes, it will react with the sample and it will give a good purple color. Rinse with the water so that excess stain will remove, and counter stain with aqueous hematoxylin for 5 minutes. Then wash and dry. After that, can observe under the microscope. In the results, we will get glycogen, neutral and mucins. These will and various glycoproteins will show the pink color, and the nuclei will give the blue color. Here in the image we can see the small one are the nuclei and the other glycogen and all will show the pink color. If there will be any change in the image, we can consider it as the abnormal tissues or the abnormal cells, and we can diagnose it for the further examination or the further different medications. So the another very important stain, that is the Congo red stain. In this slide I have not discussed about the all the stains. मैंने बहुत ही कम जो important stains हैं उनके बारे में यहाँ बताया है. तो नेक्स्ट इज़ कॉन्गो रेड स्टेन. स्टेन्स फॉर अमाइलॉइड्स. अमाइलॉइड क्या होते हैं? जैसे हमारी बॉडी में नॉर्मल प्रोटीन्स होते हैं, जब किसी प्रोटीन का एबनॉर्मली मिसफोल्डिंग हो जाता है, उस कंडीशन में अमाइलॉइड्स उसको बोलते हैं. तो उसको मिसफोल्डिंग को जब हम मेज़र करते हैं, उसके लिए भी हमें माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, और उसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में कैप्चर करने के लिए हमें स्टेन की ज़रूरत पड़ती है. तो कॉन्गो रेड हिस्टोलॉजिकल स्टेनिंग टेक्निक इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक फॉर डायग्नोसिस ऑफ अमाइलॉइडोसिस. दिस इज़ द नेम ऑफ डिजीज़, दैट इज़ अमाइलॉइडोसिस कॉज्ड बाय द मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन. कैसे किया जाता है इसको? सबसे पहले हमने डीपैराफिनाइज कर दिया. डीपैराफिनाइज हमें टिश्यू प्रोसेसिंग के बाद सब स्मेयर को करना पड़ेगा, जिससे एक्सेस वैक्स निकल जाए.
किसी भी मोम में आप पानी नहीं डाल सकते हैं, उसको स्टेन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए किसी भी टिश्यू सेक्शन से जब वैक्स को रिमूव कर देंगे तभी हमारे जो स्टेन है वो किसी भी सैंपल पे अच्छे से काम करेगा. देन ब्रिंग द सेक्शन टू डिस्टिल वाटर सो दैट द टिश्यू विल बी हाइड्रेटेड. उसको फिर कॉन्गो रेड वर्किंग सोल्यूशन से स्टेन किया जाएगा और एक्सेस स्टेन को रिमूव करेंगे बाय रिंस इन दी डिस्टिल वाटर. Differentiate quickly means 9 to 10 dips in the alkaline alcohol solutions. Sorry for the mistake. Then rinse in the tap water. After that, counter stain with Mayer's hematoxylin for 30 seconds. टाइमिंग्स का ध्यान रखना है. आपका जो प्रॉपर स्टेनिंग सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर किया है, अगर वो बहुत फ्रेश स्टेन आपने प्रिपेयर किया है तो इट विल नॉट टेक मोर देन 30 सेकेंड्स और 35 सेकेंड. अगर स्टेन थोड़ी सी आपकी पुरानी हो चुकी है, आप उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है 10-15 मिनट्स ऊपर नीचे कर सकते हैं. डिप इन अमोनियम वाटर फॉर 30 सेकेंड until the section turns into the blue color. Then remove by using the distilled water for 10 minutes and dehydrate, clear and mount, and finally observe under the microscope. So Congo Red जो हमारी डाई है वो अमाइलॉइड, इलास्टिक फाइबर्स, ईस्नोफिल ग्रैन्यूल्स इन सबको रेड कलर शो करेगा और हीमेटॉक्सिलिन हमारे न्यूक्लियाई को ब्लू कलर शो करेगा. उससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हमारा न्यूक्लियाई और जो अमाइलॉइड्स हैं उसमें क्या डिफरेंस है, क्या एबनॉर्मलिटी की वजह से क्या डिफरेंस आ रहा है, ये हम लोग ऑब्ज़र्व कर लेंगे और उसको फिर रिपोर्ट हमारी बन जाएगी. ओके. अब न्यूक्लिक एसिड स्टेन कैसे करेंगे, हम अपने डीएनए आरएनएस को कैसे ऑब्ज़र्व करेंगे इन द टिश्यूज़. तो फॉर दैट फ्यूजन स्टेन इज़ यूज्ड. फ्यूजन स्टेन इज़ अ स्टेनिंग टेक्निक डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट फ्यूजन. इन साइंटिस्ट के नाम पे ही ये स्टेनिंग का नाम पड़ा था. which is used in histology to identify chromosomal material or the DNA in cell specimen. It depends on acid hydrolysis of DNA. Therefore, fixating agent using strong acid should be avoided. जो स्टेनिंग ये वाली फ्यूजन स्टेन है वो बहुत जल्दी एसिड के संग हाइड्रोलाइज हो जाती है. ठीक है, इसलिए जो भी हम लोग फिक्सेशन यूज़ करेंगे फॉर द टिश्यू प्रोसेसिंग बहुत ही माइल्ड हम लोग फिक्सेटिव यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड वाला फिक्सेटिव का यूज़ नहीं करेंगे. दिस विल ऑल्सो गिव दी फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट. कैसे किया जाता है, ब्रिंग द पैराफिन सेक्शन टू वाटर, देन वॉश इन 2 मिनट्स. इनडायरेक्टली डायरेक्टली सेम मीनिंग है, डीपैराफिनाइज करना है हमको और जो टिश्यू है उसको हाइड्रेट करना है. सब स्टेनिंग में सबसे पहला जो प्रोसीजर का लाइन होता है हमें यहाँ पे वही मेंशन करना है कि डीपैराफिनाइज करना है और आफ्टर दैट हाइड्रेट करना है हमारे टिश्यू सेक्शन को. हाइड्रोलिसिस डीएनए इन प्लेसिंग स्लाइड इन 1 नॉर्मल HCl एट 60 डिग्री फॉर 8 मिनट्स एंड वॉश ऑफ इट. ठीक. देन प्लेस इन शिफ्ट रिएजेंट फॉर 1.5 hour. Drain and rinse in 3 lots of sulfuric acid solution for 5 minutes. 3 lots of sulfuric acid solution मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन में 3 टाइम्स हम लोगों को डालना है फॉर 5 मिनट्स. मीन्स आपने एक बार सल्फ्यूरिक एसिड में डाला फॉर 5 मिनट्स, उसको निकालना है, वॉश करना है, थोड़ी देर रखना है, उसको फिर से सल्फ्यूरिक एसिड में डालना है. इस तरह से हमें 3 टाइम्स करना है. वॉश इन रनिंग वाटर फॉर 3 मिनट्स. Then counter stain cytoplasm if desired in light green for 1 minutes. अगर रिक्वायरमेंट होगी उस केस में हम लोग साइटोप्लाज्म को काउंटर स्टेन से स्टेन करेंगे. देन उसको वॉश ऑफ करेंगे विद द डिस्टिल वाटर. डिहाइड्रेट क्विकली थ्रू 70, 90 एंड एब्सोल्यूट अल्कोहल. दैट इज़ दी जितना भी वाटर का उसमें कंजम्पशन हुआ होगा टिश्यू का उसको हम लोग अल्कोहल के हेल्प से डिहाइड्रेट कर लेंगे फ्रॉम द इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन 70%, 90%, देन 100% अल्कोहल. देन जो अल्कोहल होगा उसको हमें पता है रिमूव करना है यूजिंग द ज़ाइलिन. सो क्लियर इन द ज़ाइलिन एंड फाइनली माउंट इन द DPX एंड ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप. रिज़ल्ट हमारा आएगा जो DNA का कलर होगा इट विल बी रेड और द पर्पल कलर. हेयर वी कैन सी यहाँ पे इमेज में बहुत बार बहुत अच्छे से पर्पल कलर का डिस्टिंग्विशन नहीं होता. जब
माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन आप करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पर्पल कलर और ये जो पिंक कलर, रेड कलर, इसमें क्या डिफरेंस है. साइटोप्लाज्म विल गिव द ग्रीन कलर. And the next stain is Sudan black B stain, that is used for staining the lipid in the tissue. So there are so many stains. I have discussed about the Sudan black here. Sudan black is a lipophilic dye. ये lipids के संग, lipid components के संग बहुत easily mix हो जाता है, so that it is called lipophilic dye that stain intracellular phospholipids and other lipids. क्योंकि ये बहुत अच्छे से लिपिड के संग कंबाइन होके उसको स्टेन कर सकता है. ये वाटर सॉल्यूबल नहीं है, इसीलिए वो फैट के संग बहुत अच्छे से भी डिज़ोल्व हो जाता है. एंड फॉर दिस पर्पस इट इज़ यूज्ड to stain the fat globules which is in the cells. It is slightly basic dye and will combine with acidic group in compound lipid, thus staining phospholipids also. कैसे करते हैं? प्रोसीजर इज़ फिक्स एयर ड्राई स्मेयर इन फॉर्मलिन वेपर फॉर 5 to 10 minutes. फॉर्मलिन वेपर्स होगा, उसमें हम लोग उसको एयर ड्राई करेंगे. देन एयर वॉश फॉर 15 minutes. Now stain with working solution of SBB stain, that is Sudan black B stain solution for 1 hour. Now give 3 washing of ethanol for 30 seconds. Means एक बार इथेनॉल में वॉश किया, उसको निकाला, वाटर वॉश किया, उसको नॉर्मल रखा, वो जितना उसमें इथेनॉल आना था वो उसमें इथेनॉल हुआ. अगेन उसको इथेनॉल में डाला 30 सेकेंड के लिए, उसको निकाला, वाटर वॉश किया, उसको रख दिया. इसका पर्पस होता है कि एक्सेस इथेनॉल की वजह से वो ज़्यादा टिश्यू हमारा ड्राई ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए, और इसके लिए भी हम जो है उसको वाटर वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है. देन अगेन फाइनली वॉश विद द वाटर एंड एयर ड्राई इट. देन नाउ काउंटर स्टेन विद द लिशमैन स्टेनिंग्स. फॉर्मलिन वेपर का यूज़ किया जाता है फॉर ड्राइंग दी स्मेयर फॉर दी पोस्ट प्रिजर्वेशन. हम लोग फिक्सेशन के लिए उसको करते हैं ताकि आफ्टर दी स्टेनिंग एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हमारा जो टिश्यू सेक्शन है वो प्रिजर्व रहे. आप सोच रहे होंगे कि फॉर्मलिन वेपर में कैसे करेंगे. तो वेपर्स कैसे होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने घर पे देखा होगा, हम धूप जलाते हैं, उसमें थोड़ा सा तेल डाल के और उसमें से धुआं निकलता है. जब वो धुआं निकलता है तो उससे उसी तरह से फॉर्मलिन का भी वेपर बनाया जाता है और वहाँ पे स्मेयर रखते हैं. एक फ्यूमिगेशन की तरह वहाँ पे कवर्ड होता है, सब फ्यूमिगेट किया जाता है. जैसे लैमिनार एयर फ्लो होता है, उसी तरह का एक और चैम्बर होता है, उसमें उसको रख के फ्यूमिगेट किया जाता है. इसको बाहर नहीं करते क्योंकि वो थोड़ा सा हार्मफुल होता है फॉर अस, तो उस तरह से किया जाता है. उसको फ्यूमिगेट करने के बाद उसको एयर वॉश करते हैं. एयर वॉश का एग्जांपल मैं दूंगी. अभी जैसे आप देख रहे होंगे कोरोना के लिए लोग एक गेट से जो क्रॉस कर रहे हैं तो बहुत तेज़ हवा आती है दोनों तरफ से और उसको क्लीन करती है, स्टेरलाइज कर देती है. इस कंडीशन में एयर वॉश बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होता, थोड़ा सा स्मॉल प्रेशर में होता है, कम प्रेशर में होता है. उस तरह से हमारी जो फॉर्मलिन वेपर्स हैं उससे हमारी स्मेयर ड्राई हो जाएगी और देन एयर वॉश हो जाता है. तो ये आपका क्लियर है. अब हम बात करते हैं इसके रिज़ल्ट के बारे में. तो डाई जो है एक्यूमुलेट विद द फैट्स, ब्लैक ग्रैन्यूल्स विल स्टेन द न्यूक्लिया. इन दिस इमेज ये जो स्मॉल ब्लैक ग्रैन्यूल्स हैं ये न्यूक्लियाई हैं, स्टेन विद द सुडान ब्लैक. नेक्स्ट फॉर द कनेक्टिव टिश्यू we are discussing about the Mason's trichrome stain for detection of collagen fibers in tissue such as skin, stomach, intestine and lungs. Principle है as is its name, trichrome means 3. तो 3 dyes इसमें यूज़ की जाती हैं which selectively stains the muscles, collagen fibers, fibrins and the erythrocytes. As general rules in trichrome stain, less porous tissues are stained by small dye molecules. Acid fusion stain all the connective tissues, that is
Phosphomolyblic acids competes with the fusions and gain access to the collagen displacing the fusions. If reaction stopped at appropriate time, collagen will be free to stain by the methylene blue. तो स्टेप इसी तरह से ये 3 स्टेन का यूज़ किया हुआ है कि किस तरह से स्मॉल जो डाई है स्मॉल मॉलिक्यूल्स को वो स्टेन करेगा. फॉस्फोमोलिब्डिक एसिड फ्यूजन जो है उसके संग it will gain access to the collagen displacing the fusion. And next, if the reaction stop, जो ऊपर वाली रिएक्शन है हमारी वो सही टाइम पे स्टॉप हो जाती है तो कोलेजन विल बी फ्री टू स्ट्रेन द मिथिलिन ब्लू. नाउ अगेन द प्रोसीजर. सो डीपैराफिनाइज करेंगे हम लोग टिश्यू को एंड रीहाइड्रेट थ्रू दी 100% एल्कोहल 95% एल्कोहल मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में एल्कोहल का हम उसको रीहाइड्रेट करेंगे. वॉश करेंगे विद द डिस्टिल वाटर. देन फॉर फॉर्मलिन फिक्स टिश्यू रीफिक्स इन बुइन सॉल्यूशन फॉर 1 hour at 56 degree to improve staining quality, although this step is not absolutely necessary. ये डिपेंड करता है कि आपका टिश्यू टाइप कैसा है. अगर आपका टिश्यू रिक्वायर है कि उसमें से हमें फॉर्मलिन फिक्स करना है और हमें एक्सेस जो है उसको रिमूव करना है सो दैट इट कैन बाइंड विद द स्मेयर, उस कंडीशन में हमें बुइन सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है जिससे कि हमारी जो स्टेनिंग क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाए. रिंस with the running tap water for 5 to 10 minutes to remove the yellow color. Then stain in Vigart's iron hematoxylin. Sorry for the wrong points. Stain in Vigart's iron hematoxylin working solution for 10 minutes. After that, rinse in the running tap water for 10 minutes. उसको वॉश करने के बाद वी विल यूज़ दी अनदर स्टेन दैट इज़ बीवरेज स्कारलेट एसिड फ्यूजन सॉल्यूशन. उसमें हम लोग 10 to 15 मिनट्स के लिए उसको रख देंगे. जो हमारा सॉल्यूशन है इट कैन सेव फॉर द फ्यूचर यूज़ क्योंकि हम बहुत उसको रीयूज़ कर सकते हैं. उसको हम लोग फिर डिस्टिल वाटर से वॉश करेंगे. डिफ्रेंसिएशन के लिए वी विल यूज़ द फॉस्फोमोलिब्डिक फॉस्फोटंगस्टिक एसिड सॉल्यूशन फॉर 10 to 15 मिनट्स और until the collagen is not red. Then ट्रांसफ़र सेक्शन डायरेक्टली विदाउट रिंस. हमें उसको रिंस नहीं करना. इट विल नॉट रिएक्ट विद द अनदर component of the tissue smear. So to aniline blue solution and stain for 5 to 10 minutes. Rinse briefly in distilled water and differentiate in 1% acetic acid solution for 2 to 5 minutes. Acetic acid solution का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है so that we can remove the excess. Wash in distilled water. Then dehydrate very quickly with alcohol, absolute ethyl alcohol, and then clear with the xylene solution. Finally, mount with resinous mounting medium. There are so many different like DPX and resinous mounting mediums. So we can use this one in the case of connective tissue. रिजल्ट सेक्शन में जो हमारा कोलेजन होगा दिस विल शो दी ब्लू कलर. न्यूक्लियाई विल गिव यू दी ब्लैक कलर और मसल्स साइटोप्लाज्म केराटिन ये सब हमें रेड कलर शो करेगा. हीमोसिड्रिन इज़ प्रेजेंट इन द टिश्यू एज अ इंट्रासेलुलर पिगमेंट्स. हमारी बॉडी में हमें पता है कि आयरन स्टोरेज कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है जो कि present in the intracellular pigment. और अगर कुछ एबनॉर्मल मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं उस कंडीशन में भी हीमोसिड्रिन का जनरेशन होता है. इसका प्रिंसिपल वर्क है फॉर द पर्ल्स स्टेन. द रिएक्शन अकर विद द ट्रीटमेंट ऑफ टिश्यू सेक्शन विद एसिड फेरोसाइनाइड सोल्यूशन. जो रिएजेंट्स हम लोग यूज़ करेंगे एनी फेरिक आयन टिश्यू में कोई भी जो फेरिक आयन होगा वो इस रिएजेंट के संग कंबाइन करेगा और कंबाइन करने के बाद दैट इज़ द फेरोसाइनाइड सॉल्यूशन. इसके संग कंबाइन करने के बाद इट विल गिव्स यू द ब्राइट ब्लू पिगमेंट दैट कॉल्स द प्रूजन ब्लू और द फेरिक फेरोसाइनाइड. इसको हम लोग फिर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के टाइम पे ऑब्जर्व कर लेंगे और अपनी रिपोर्ट बनाएंगे. फिक्सेशन विच इज़ अवॉइड द यूज़ ऑफ एसिड फिक्सेटिव्स, क्रोमेट्स,
will also interfere with the preservation of the iron. जो इसमें आयरन है, इस कंडीशन में जितने भी एसिड फिक्सेटिव्स हैं उसका यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर एसिड फिक्सेटिव्स का यूज़ किया जाएगा तो बहुत सारे जो हमारे आयरन्स हैं वो प्रिजर्व नहीं हो पाएंगे और हम लोग उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे या फिर अंडर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे. सो फॉर दी प्रोसीजर अगेन डीपैराफिनाइज करेंगे सेक्शन को और उसको वाटर में हाइड्रेट करेंगे. ट्रीट द सेक्शन विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड एसिड फेरोसाइनाइड सॉल्यूशन फॉर 10 to 30 minutes. Wash well in distilled water, then lightly stain the nuclei with 0.5% aqueous neutral red, और अगर ये स्टेन अवेलेबल नहीं है उस कंडीशन में 0.1% न्यूक्लियर फास्ट रेड का भी यूज़ कर सकते हैं. देन वॉश द स्टेन यूजिंग द डिस्टिल्ड वाटर, उसको फिर डिहाइड्रेट किया जाएगा, देन क्लियर किया जाएगा यूजिंग द ज़ाइलिन सॉल्यूशन एंड फाइनली माउंट करके माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हम इसकी करेंगे. जो हमारा रिज़ल्ट आना चाहिए, फेरिक सॉल्ट्स अगर हमारे प्रेजेंट हैं दैट विल शो यू द प्रेजेंस ऑफ पर्ल्स that will give you deep blue color. Nuclei will give the red color. अगर erythrocytes हैं तो they will show the yellow color. तो with this हमारे बहुत जो common stains हैं उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया. मैंने कुछ common 7 stains के बारे में बात की है, पर क्लासिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे स्पेशल स्टेन्स हैं, साथ में हेमेटॉक्सिलिन ईओसिन स्टेन्स भी हैं. सो दिस इज़ ऑल. थैंक यू.